इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एंड भारत का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ है. माय बैड भारत का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एंड मेरे हिसाब से तो काफी एक्सपेक्टेड स्क्वाड आया है. व्हाट डू यू थिंक? Absolutely. Hardly any deviation from what we had thought. Yeah. इसी तरह से सोचा था कि एशिया कप का स्क्वाड का एक ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन होगा. Yes. आई थिंक इट्स प्रीटी मच अप टू आवर एक्सपेक्टेशन. 2023 वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट एंड 2019 वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट काफ़ी सिमिलर था. आई टेल यू हाउ. सूर्य कुमार यादव इज योर विजय शंकर, संजू सैमसन इज योर अंबटी रायडू एंड तिलक वर्मा कैन बी योर एक्स फैक्टर ऋषभ पंत. Can be, but I think ये पूरे entire squad में I'm pretty much aligned to the squad honestly, except for one, and you know who it is. Yeah. Surya Kumar Yadav. And you know I'm a huge Surya fan, Yeah, right? yeah. And in spite of that, I feel that Surya has been lucky to get into this squad, especially because अभी तक उन्होंने he has not been that kind of a player that he is in T20I, in ODIs. Yeah. Looking at his numbers, he has played around 26 matches और उनका average around 24 का है with a strike rate of around 100. बड़े teams के सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके सामने he has not been great at all. High score is 64 जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, the team that has not got into the World Cup even, and there's one more 50 which is against Sri Lanka. Hundreds नहीं है. So I think he has not yet proven his merit. We have to wait and watch if he can do something absolutely wonderful in the World Cup. Yeah. I'll be very happy. As I mentioned before, I love Surya. So if he plays well, nothing like it. But at the moment, I feel looking into his numbers and the kind of competition that you have to get into the India squad World Cup में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सूर्या हैड बीन लकी. या यू आर राइट. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हुए सूर्य कुमार के सिलेक्शन को लेके, बट क्रिकेट इज़ अ फनी गेम. ओके, या कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो यू नेवर नो कि इस वर्ल्ड कप के बाद शायद सूर्या अपनी जगह परमानेंट कर ले टीम में. ओके, क्योंकि वर्ल्ड कप में 9 मैचेस है. ठीक है, 9 मैचेस के बाद आप सेमी खेलोगे. ठीक है, सो 9 मैचेस में आपकी टीम कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड कंडीशंस. ठीक है, एंड सूर्य कुमार यादव जो गेम चेंजर है, जो हमें पता है, यू नेवर नो कि आप उसे एक मैच में लाओगे. 35th ओवर में हिल कम एंड हिल बैश द बॉलर्स, हिल गिव अ परफेक्ट एंडिंग टू द इनिंग्स एंड उसके बाद सेकेंड इनिंग में आके लेफ्ट हैंडर्स के सामने ऑफ स्पिन के 2 ओवर्स भी डाल सकता है. ठीक है, वो स्टैट्स एंड ऑल सभी राइट है, आई एग्री विद यू, बट उसे लिया है वो भी एक मेरिट की वजह से ही लिया है, क्योंकि हमें पता है कितने अनबिलीवेबल बैट्समैन है वो T20 के. The 2011 team had a batting till number 7. Yeah. अभी हम चाह रहे हैं batting till 8 or Yeah. 9, Yeah. right? And that is the reason why all-rounders are being included. Yeah. So उस point of view से just एक specialist batter को लेना, whether that makes any sense. I know you mentioned that Surya bowling भी कर Yeah. रहा है एक आध, Yeah. but he is still not Yeah, a yeah, batting all-rounder. Yeah. From that point of view, I know this is a little controversial, but probably हम उस हिसाब से तिलक को भी actually consider कर सकते थे. I know he has not made a debut. He will be absolutely inexperienced in this particular stage. वर्ल्ड कप ऐसा स्टेज है जहाँ पे प्रेशर होल्ड करने की ज़रूरत है. बट या कंसिडरिंग जस्ट द फैक्ट दैट सूर्या इज अ ग्रेट T20I प्लेयर, तिलक is a good T20I player as well. And he brings in certain amount of bowling diversity. Plus, he's a left-hander, which Team India desperately needs. Yeah. So, वहाँ पे I felt that maybe we could have considered all-rounder over a pure batter. The other thing, also I feel that we could have actually considered an a specialist bowler. Right? So, what do you think about that? The team combination overall. ओके, सो मैं जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल में हर जगह पे देख रहा हूँ ना, सो नंबर 8 के स्पॉट को काफ़ी मेंशन हो रहा है, क्योंकि रोहित को भी चाहिए, टीम इंडिया को और कोचेस वगैरह को चाहिए कि नंबर 8 पे थोड़ा बैटिंग हो जाए. ओके, आई टेल यू थिंग. 2011 का नंबर 8 हरभजन सिंह, 2015 वर्ल्ड कप का नंबर 8 अश्विन, 2019 का नंबर 8 भुवनेश्वर कुमार, अभी 23 का नंबर 8 शार्दुल ठाकुर. और अगर आप देखोगे कि पास्ट 2011 से 19 तक वर्ल्ड कप के नंबर 8 सारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स. मतलब स्पेशलिस्ट बॉलर्स मतलब आप बोलोगे कि अरे ऐसे कैसे, शार्दुल भी स्पेशलिस्ट बॉलर है. ना, वो सारे जो तीनों जो बॉलर्स है, हरभजन, अश्विन एंड भुवनेश्वर, वो हर मैच में अपने 10 ओवर्स का कोटा कंप्लीट करते थे. क्या शार्दुल अपना हर मैच में 10 ओवर्स का कोटा कंप्लीट करता है? ठीक है, ही इज़ जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन. ओके,
उसे 10 ओवर्स नहीं डालते, उसके ओवर्स फिल इन करते हैं हार्दिक पांड्या, नहीं तो कोई भी अभी रोहित और कोहली डालने वाले वैसा, ठीक है। वो आई एग्री कि जब भी विकेट नहीं मिलते तभी वो दे देता है, बट नंबर 8 के स्पॉट को इतना हाइप करा है ना मीडिया ने कि नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए। अरे आप पास्ट में जाके नंबर 8 देखिए, ये सारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स फर्स्ट थे। आप शार्दुल के वजह से शमी को बिठा रहे हो पाकिस्तान के मैच में। शमी इज अ स्पेशलिस्ट बॉलर, ठीक है, बट ही कैन बैट एज वेल। आप लॉर्ड के वजह से लॉर्ड्स की इनिंग मत भूलिए, ठीक है। सो आई थिंक कि इस जगह पे वो नंबर 8 में आपको जो चाहिए, इसी वजह से भी सिलेक्शन, अक्षर पटेल का सिलेक्शन भी इसी वजह से, जैसे आपने कहा कि ऑलराउंडर इतने लिए क्योंकि उन्हें नीचे बैटिंग चाहिए। बट टेल मी वन थिंग, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि कोलैप्स हुआ तो नीचे के काम आएंगे, बट अगर कोलैप्स हुआ है, अगर आपके 7 बैट्समैन जो प्रॉपर, जिनकी स्किल आपसे अच्छा है, वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, सो क्या चांसेस है आपका नंबर 8 परफॉर्म करेगा, राइट? प्रिसाइजली माई पॉइंट। एक टीम जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली है, शुभमन गिल इन अ ग्रेट फॉर्म, उस टीम में वी आर स्टिल थिंकिंग वी नीड अ 8 और 9 टू बैट, ठीक है। आई थिंक द thought process that I heard about this is came in from DK actually. Okay. DK mentioned कि यार ये पॉइंट नहीं है कि हमें 8 या 9 को बैटिंग करानी है. It is not that. But the psychological advantage a Rohit or a Kohli gets when you have a batting depth till 8 or 9 कि आप ना वो ऊपर वाले लोग एकदम freely खेल सकते हैं. And Rohit has spoken about this at large that they want to go freely. वो पहले के 10 ओवर they want to capitalize on. So I think that is that psychological advantage. More like having a insurance kind of a backup is what I heard. That kind of a 8 or a 9 batter brings in. But I also completely agree with your point. Yeah, we are talking of a team that has Rohit Sharma, who has scored 5 centuries in the last World Cup. King Kohli, the King Kohli. Shubman Gill, who is probably the next best the next generation best player. So yeah, I think उस हिसाब से we are just thinking too much into it, and it was important for us to probably back the first 7. But does it also, I mean, I was actually thinking from the point of view that does it also say that we are lacking in a little bit of confidence in our top 7, comparing our 2011 World Cup? Of course, look at the lineup. से कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है. आई फील यू नो दैट वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड बैटिंग. हाँ, वी आर एट द मोमेंट लुकिंग अ लिटिल रस्टी एट द बैक ऑफ ऑल द इंजरीज, श्रेयस कमिंग इन एटसेट्रा. बट आई थिंक वी डू हैव वेरी गुड बैटिंग यूनिट. It's all about now refining things out, all about going together in the park and playing as a unit. वो एक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे पिछले अभी तक एशिया कप में वही एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि इंडिया बहुत रस्टी लग रही है. नेपाल के सामने भी बहुत रस्टी लगी है, और इसका सिर्फ एक ही वजह है कि हम लोगों ने एज अ यूनिट बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेला है. एंड दैट इज़ वेयर यू स्पोक अबाउट दैट यू नो कि हमें शायद अगले 7-8 मैचेस तक वो चेंजेस करते रहेंगे. येस, चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमें अडेप्ट करना चाहिए, बट एज लॉन्ग एज पॉसिबल वी शुड hold on to that playing 11 in as many matches as possible. At least the top 6-7 people should be there. एक्चुअली अगर देखा जाए तो अपने जो भी 7 बैटर्स है ना, वो एकदम मैच विनर्स है, ठीक है. कोई भी ऐसे इनएक्सपीरियंस नहीं है, सारों ने अपना पोजीशन जस्टिफाई करा है, एकदम प्रूवन करके आ रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट केएल राहुल एज वेल, ठीक है. तो सारे जो भी है ना वो मैच विनर्स है, ठीक है. सो आपको उन पे फेथ होना चाहिए, ठीक है. ये राइट है कि यार कभी कभी कोलैप्स हो जाते हैं और नीचे के 10-15 रन ही मैच विनिंग के डिफरेंस बन जाते हैं, ठीक है. बट आपके पास बुमराह है जो पाकिस्तान के साथ में 16 रन मार रहा है, ठीक है. ओके, मियाँ है जो बैट घुमाएगा, वो तो रिवर्स भी प्रैक्टिस कर रहा है आजकल. सो देखा जाए तो वही है कि आपको एक चॉइस लेना है. आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि ये सिलेक्शन में वर्ल्ड कप में नहीं, ऑब्वियसली बनता ही था, शार्दुल का बनना 15 में बनता ही था, बट इट्स अ चॉइस विच दे हैव टू मेक कि आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना है जो शमी ने अच्छा परफॉर्म करा है कि नहीं, आई डोंट नो नेपाल के सामने, क्योंकि नेपाल के सामने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज था. आपको स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ में जाना है कि आपको बैटिंग के वजह से शार्दुल को खिलाना है, और ये जख्मा WTC फाइनल्स का अभी भी ताज़ा ही है. एग्जैक्टली, आई थिंक वही हमने चॉइस WTC फाइनल में भी लिया था. बट कमिंग टू योर पॉइंट ऑन यू नो केएल, आई नो केएल्स inclusion into the side has been pretty much automatic, if I would say. But yeah,
I do agree to the point also that he has been playing good cricket for the last couple of years. Injury has been unfortunate, but it's also important for us to see him a few times before we get into that big stage, which probably we will be able to see because of the rest of the Asia Cup games. I don't know whether he's coming back in Asia Cup or not, but Yeah, definitely he came. he has come Touchdown back, Sri Lanka, But then we also have the 3 matches of Australia. Australia, yeah. तो शायद हमें केएल दिखने को मिल Yeah, जाएगा. yeah, yeah. But at the same time, for me, in my playing 11, Ishan Kishan is above KL Rahul. And Especially after that innings. not only after that innings, but मेरे लिए Ishan Kishan, in fact, if I would talk about India's batting order as per me, I would put Ishan and Shubman on the top for the left and right hand combination. Okay. यार वो पाकिस्तान के सामने वाले मैच में बहुत ही लग रहा था कि यार टॉप 3 ऐसे फटाक से आउट हो गए. वहाँ पे थोड़ा सा अगर एक कॉम्बिनेशन रहता तो मे बी वी कुड हैव हैड अ लिटिल बिट, आई मीन थोड़ा सा और प्रेशर डाल सकते थे बॉलर्स पे. तो एक उसकी वजह से मुझे लगता है लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इन द टॉप विल एड इन सम वैल्यू. सो उस वजह से मुझे ईशान किशन ऑन द टॉप चाहिए. ही इज़ डेफिनेटली एन एक्स फैक्टर प्लेयर. एंड देन आई ऑल्सो फील रोहित शर्मा can come in at number 4 or number 5. Okay. So I know probably ये थोड़ा सा ख्याली पुलाव हो रहा है. As of now, I'm pretty sure India team ऐसी कोई experiment नहीं करेगी. थोड़ा सा नहीं, पूरा ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही ख्याली पुला रहा, क्योंकि ऐसे अननेसेसरी चेंजेस आई डोंट थिंक सो अभी वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है टीम इंडिया को अभी टैकल करने के लिए. सो आई डोंट थिंक जो वो मिक्सअप है उसमें ऐसे चेंजेस करेंगे. वो अगर फोर्सफुली चेंजेस होगा सो या वी कैन अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक सो. जो मिक्स ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि शुभमन एंड रोहित का इतना जो पार्टनरशिप चल रहा है ना, उतना इतने जल्दी उनके मोर देन 100 रन्स के पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं. ठीक है, भले अपने एक पल के सामने का मैच करो तो. सो आई थिंक शुभमन और रोहित का वो ऑलरेडी एक ऐसा केमिस्ट्री बन चुका है. सो ओपनिंग के स्लॉट के लिए आई रियली डोंट थिंक अभी वो इंडिया कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेगी. आई थिंक राइट, यूर राइट. मुझे भी पता है कि शायद इंडिया ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी until unless there is a scarcity of Shreyas Iyer at number 4 or any problems around that. I don't rule out that issue, but at the same time this is my aspiration of it. गौतम गंभीर के साथ मैं पहली बार एक सिंगल थॉट प्रोसेस पे आई हूँ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. बट या आई थिंक रोहित would have would still be a great number 4 considering his stats. उनका एक सेंचुरी है, नंबर 4 पे 3 हाफ सेंचुरीज है. इवन एट अ नंबर 5 he has उनके पास 8 हाफ सेंचुरीज है नंबर 5 पे. Okay. तो कुछ 25 इनिंग्स 26 इनिंग्स वो खेल चुके हैं. तो he has the numbers to back up at number 4 or number 5 as well, and hence that in my team that gives Ishan an opportunity to open with Shubman and India to have that classic left and right hand combination that I would have loved to see. तो यही एक्चुअली लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि केएल अभी स्ट्रेट अवे टीम में आएगा कि नहीं. ओके, सो ऑब्वियसली उसका ना नो ब्रेनर था कि उसका सिलेक्शन होना है ऑल, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप से उसने ओडीआई में परफॉर्म किया है. ठीक है, बट ना एक चीज़ है यार, लोग काफ़ी मतलब थोड़ा हेट भी दे रहे कि ईशान अभी खेला है ना, आप इसे स्ट्रेट अवे कैसे लाओगे, इतना बर्डन कैसे दोगे, क्योंकि उसका वो इंजरी से भी आया था. बट एक चीज़ है यार जिसके लिए आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि जितने एडजस्टमेंट्स केएल राहुल ने करे ना, उतने आई रियली डोंट थिंक किसी भी इंडियन बैटर ने आज तक करे हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैटिंग में. ठीक है, आपको मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, अरे केएल है ना. आपका ओपनर इंजर्ड हो गया, अरे केएल है ना. आपका विकेट कीपर नहीं है, अरे केएल है ना. सो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में केएल है ना. ठीक है, सो इट्स लाइक उसका एकदम नो ब्रेनर था. एंड इवन इफ ही कम स्ट्रेट अवे इन, सो आप सरप्राइज मत होना. एक्चुअली ना उसका अभी ना देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि श्रेयस अय्यर उसे रिप्लेस कर सकता है केएल राहुल को. एंड केएल राहुल एंड ईशान किशन बोथ माइट प्ले. ओके, दे कैन बोथ. अगर श्रेयस ने फॉर्म नहीं लाया, ठीक है, उसके पास है टाइम है. आई एम नॉट सेइंग एक मैच के बाद मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि श्रेयस अय्यर को भी रिप्लेस कर सकता है केएल राहुल. ठीक है, एंड ईशान किशन माइट प्ले, और आपको एक स्पेशलिस्ट कीपर भी मिल गया फिर. सो या मतलब केएल राहुल के टीम सिलेक्शन पे तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार बंदे का बनता है. हाँ, बनता है एब्सोल्युटली. पॉइंट बस वही है कि हाउ क्विकली ही गेट्स बैक टू द रेल्म ऑफ थिंग्स. इंडिया टीम राइट नाउ बहुत रस्टी लग रही है, एज वी हैव सीन. बस वहाँ से एक सिंगल यूनिट बन के खेलना है,
और उसके बाद तो है ही हम लोग बैक Yeah. करने के लिए Yeah, yeah, टू चीयर फॉर टीम भारत, Yeah. राइट. तो आई थिंक ओवर एंड अबव अच्छा लग रहा है. एक आध लोगों को मिस करना ही था. Yeah, हम एज yeah. फैंस हमें थोड़ा सा दुख होना ही था. Yeah. मुझे तो चहल के लिए बहुत दुख है Yeah. यार. चतुर चंचल चहल को मैं बहुत मिस करूंगी Yes, इंडिया yes. के वर्ल्ड कप में. एक्चुअली सैड था वो थोड़ा चहल का एक्सक्लूजन, बट इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि इंडिया को किस डायरेक्शन में जाना था वो काफ़ी क्लियर थे एशिया कप के बाद ही. सो इवन इफ रोहित ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यू नेवर नो अश्विन और चहल को चांस मिल सकता है, वी ऑलरेडी न्यू कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है. एंड सो या मतलब देखा आई जाए थिंक तो व्हाट आई एम सुपरबली हैप्पी अबाउट इज दैट यू नो कि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है. वी ऑल लव दिस गेम, तो इसीलिए हम सबके पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे. बट व्हाट आई लव अबाउट दिस होल सिचुएशन इज दैट यू नो कि टीम इंडिया ने पहली बार ना एक स्टैंड लिया है. Yeah. दे हैव created a theory. They have backed their theory with the Yeah. right amount of right players, right things. Right. And I'm sure when they have created a theory, they must have done everything around it to, Right. you know, really reach that top. Right, So I trust the team. I trust Rohit Sharma to bring the cup, to keep the cup home. Yeah. And yeah, I think over and above, काफी positive feeling के साथ हम जा रहे हैं वर्ल्ड यस कप में. यस यस क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस टाइम नो एक्सक्यूजेस. आपके घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है, आपके कंडीशन, प्लेइंग 11, टीम फॉर्मेशन, बैड लक, कुछ भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा. ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग दिस ट्रॉफी होम, क्योंकि अगर नहीं लाया तो हमारे मेंटल हेल्थ का क्या होगा भारत के लोगों के, वो हमें भी नहीं पता है. Absolutely. ठीक है, सो या फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग कि यार ये वर्ल्ड कप भी अपना ही है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, लग रहा है कि यही प्लेयर्स होंगे जो 2023 वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन में पार्ट होंगे. क्या बात कर दी. सो या let's cheer for team India and आएगा वर्ल्ड कप, घर आएगा. ज़रूर.